Hello, good evening and assalamu alaikum. Thank you so much once again for joining us on Sports Tonight. I am Rohan Nadeem and I am back once again bringing you all the latest news from the world of sports. There is so much live action going on right now, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे वो विम्बलडन में हो, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी में हो या क्लब वर्ल्ड कप में हो. And as always, we have so much to cover and so much to analyze, so much to unpack. And we also have a very special guest for you in tonight's show. पाकिस्तान हॉकी के ऊपर हम बहुत एक deep analysis भी करेंगे because there is so much to discuss when we talk about Pakistan hockey's past, present, and most importantly, the future. But before we get towards all of that, we have some news headlines lined up for you just in case you missed some of these events that have been happening. I'll take you through them. Here's a recap of the news from around the world. Starting with England versus India, the third test at Lord's London. Jadeja's defiance goes in vain as England pull off a dramatic win at Lord's. It was a grueling test of patience for England, but India eventually fell short of their target by 23 runs. And in the end, England beat India and a comfortable win for them by 22 runs. It was a very narrow margin, and of course we all remember what happened on this date all those years ago in 2019. It was Ben Stokes, it was Jofra Archer, and it was Lord's. It's not a place for the faint-hearted. Mohammad Siraj did not belong on his feet at all. If you remember, if you watch these visuals and if you saw the match, आपको पता होगा मैं किन moments की बात कर रही हूँ. Complete sorrow engulfing him. Siraj की अगर हम बात करें, but in the end, of course, the fate was that India were not to win at this time. The series is now standing at 2-1 in the favor of England, which makes, of course, the next match all the more exciting. And of course, Test cricket की दुनिया से अगर हम बात करें, एक और exciting, dramatic finish जो है वो हमें देखने को मिली. West Indies versus Australia, third test at Kingston, and Mitchell Starc, what a brilliant spell that was, 6-4. और दूसरी तरफ बोलैंड के हैट्रिक ने वेस्ट इंडीज़ को कन्फाइन किया 27 ऑल आउट पे. एक 0-3 जो डिफीट इस वक्त हुई हुई है वेस्ट इंडीज़ को इस सीरीज़ में, वो अब उनका स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स देयर सेकंड इनिंग्स लास्टेड ओनली 14.3 overs and had 7 batters dismissed on a duck as they went down by 176. So these scenes that you're seeing, they're not at all scenes that you see every day. एक record हमने देखा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, but of course मिचेल स्टार्क जब on song होते हैं तो who can stop him? Well, speaking of being on song, Chelsea are the champions of the Club World Cup. PSG have been swatting aside all corners all season, from wrapping up the League One title in early April to demolishing Inter Milan in a Champions League final so one-sided it was scarcely believable. They seemed to be breezing through the Club World Cup in a similar fashion too. लेकिन of course हम यहाँ पे देख सकते हैं कि they heavily tipped to cruise past Chelsea in New Jersey. This time it was the Parisians who were left stunned. Even before the Coldplay halftime show, Cole Palmer had scored 2 superb goals and created another for João Pedro to put the Blues 3-0 up, and that is how it ended in the favor of the Blues, lifting the Club World Cup. And of course, brilliant scenes there. And of course, दूसरी साइड पे अगर हम देखें जी, Jannik Sinner beats Carlos Alcaraz in the Wimbledon tennis final. And what a story this was, of course, after losing to Alcaraz in the French Open final. Sinner completes the most remarkable of comebacks just a month later to claim his maiden Wimbledon title. Yet another chapter is added to what has become tennis's greatest rivalry since the days of the Big Four. Both players struggled with their service game considerably in the opening 3 sets. But Sinner showed his champion pedigree by lifting his game at the opportune moment. And in the end,
His 62% on first serve proved to be an important factor when compared to Alcaraz's 53%, and what a win for him, lifting his first Wimbledon title. And speaking of the Wimbledon titles, of course, Poland's Iga Swiatek has won the Wimbledon Open women's singles title for the first time. In the final played in Britain, Swiatek defeated America's Amanda Anisimova in straight sets. The match lasted only 57 minutes. The Polish player won 6-0 and 6-0. This is the first time since 1911 that no player has won a single game in the women's singles final. And this is Iga Swiatek's 6th Grand Slam title. Previously, she has won the French Open 4 times and the US Open title. And after this, Iga Swiatek's total number of career titles has reached 23. बढ़ते हैं जी पाकिस्तान हॉकी की तरफ. This time it is the juniors who were making headlines. Green shirts were unbeaten in this tournament, but they unfortunately lost to Japan in the under-18 Asia Cup hockey final. They showcased impressive form, lekin in the end it was Japan that emerged victorious in the men's under-18 Asia Cup 2025 after they thumped Pakistan 3-0 in the grand finale at the National Hockey Training Center on Sunday. With an aggressive start in the first quarter of the final, Pakistan immediately pressed forward to counter and challenged the Japanese defense in pursuit of the opening goal, but well, unfortunately could not close the game and were unable to lift the title. दूसरी तरफ जी अब हम जाते हैं टूर डी फ्रांस के हेडलाइंस में. Belgian cyclist Tim Merlier won his second Tour de France victory on stage 9. Slovenian Tadej Pogačar retained his leader's jersey and overall lead. The 9th stage of the 21-stage race covered 174.1 kilometers from Shannon to Catharines. Belgian cyclist Tim Merlier topped the podium for the second time in the event, covering the prescribed distance of 3 hours and 28 minutes and 52 seconds. Pogačar की जो 54-second lead over Belgium's Remco Evenepoel, और ये headlines हैं जी Tour de France की. And now let's move on towards volleyball. Pakistan has officially qualified for the quarterfinals of the second Asian Under-16 Volleyball Championship. In the ongoing event in Thailand, the national Under-16 team defeated Saudi Arabia 3-0. Pakistan's winning score was 25-14, 25-13 and 25-12. This is the second consecutive victory for Pakistan team in the tournament. और अपने पहले मैच में the national Under-16 team defeated Korea by 3-0. And well, Pakistan will play its third and final group match against China. Well, these were the news headlines, of course, sports action from around the world, bringing you all of the latest. और इसी में से हम कुछ pick out करेंगे to discuss in the later half of the show. But क्योंकि हमारा focus आज पाकिस्तान हॉकी पे है, चाहे वो जूनियर्स की इस बार की जो चैम्पियनशिप जो उनकी इस बार विक्ट्री रही है, जो लॉस रहा है ओवर जापान, उसकी भी बात करेंगे. बट ओवरऑल फॉर द फ्यूचर रोड मैप क्या है, प्रो लीग के हवाले से जो डिस्कशंस अभी चल रही हैं, जो कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे. ऑल्सो पाकिस्तान हॉकी का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में मज़ीद हमें क्लैरिटी थोड़ी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं इन एशियन या रीजनल चैम्पियनशिप्स की या इवन ग्लोबल एंड पे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्यों ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हुई है ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं. बट इट ऑल आई थिंक ट्रैक्स डाउन टू द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर. इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और उनको हम इनवाइट करेंगे ऑन स्पोर्ट्स टुनाइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड. वील बी राइट बैक. डोंट गो एनीवेयर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक ऑन स्पोर्ट्स टुनाइट. हमारी आज की डिस्कशन जो है वो बहुत रेलेवेंस होल्ड करती है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान हॉकी. हम अक्सर पाकिस्तान हॉकी टीम के मुतालिक, क्या चाहे वो जूनियर हो या हमारी नेशनल हॉकी टीम हो, हम हेडलाइंस ज़रूर देखते रहते हैं कि इस टूर्नामेंट में या इस रीजनल कंपटीशन में हमने
एक पोजीशन हासिल की है, या हम रनर्स अप रहे हैं, या हमने कोई मेडल जीता है, या हम एक परसूट में निकले हुए हैं, बट हम अक्सर ये डिस्कशंस जो हैं वो बहुत लिमिट कर देते हैं टू ओनली दोज फ्यू वीक्स और फ्यू डेज़। इन डिस्कशंस को हमारे शो के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंड भी करें कॉन्टेक्स्ट में भी, और थोड़े मसले मसाइल उनके जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करें, ताकि हम और आप मिलके इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग भी कर सकें और एक ओपिनियन भी फॉर्म कर सकें कि पाकिस्तान हॉकी इस वक्त कहाँ जा रही है। और आज मेरे साथ जो दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे बेहतर आई डाउट कि कोई भी इस वक्त करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हॉकी के ऊपर बात कर सकता है। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे पास आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ओलंपियन एंड द करंट कोच ऑफ द पाकिस्तान हॉकी टीम, ताहिर ज़मान साहब। ताहिर ज़मान साहब, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। आपके साथ बड़ी गुफ्तगू हमने करनी है हॉकी के ऊपर भी, और अभी हम बिफोर द शो भी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बहुत इंसाइट्स हमें मिल रही थी। उनके साथ मौजूद हैं जिनको आप पहले भी हमारे शो पे देख चुके हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी फील्ड हॉकी प्लेयर, जो कि प्लेइंग रोल में भी आप उनको देख चुके हैं, कोचिंग रोल में भी, और इस वक्त वो अकेडमीज़ के साथ भी इन्वॉल्व हैं। प्लीज़ वेलकम ख्वाजा जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम निकाला। ताहिर ज़मान साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि हम हॉकी के बारे में अपने शो पे बहुत बिल्डअप भी करते हैं, चाहे वो मैचेस हों, चाहे अजलान शाह कप हो, चाहे नेशंस कप हो। फ़िलहाल नेशंस कप के हवाले से आई वांट टू आस्क यू, पाकिस्तान वर एबल टू रीच द फाइनल ऑफ द नेशंस कप एंड अनफॉर्चुनेटली हम उसमें न्यूजीलैंड से हारे। लेकिन इस टूर्नामेंट की जर्नी को थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और क्या एज अ कोच आपके इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो आपका शुक्रिया शो में मुझे लेने के लिए, क्योंकि आजकल हॉकी की बातें हो रही हैं। हॉकी जूनियर में भी परफॉर्म किया, अभी रिसेंटली एशिया कप फाइनल खेले हैं हम लोगों ने। जब मैं स्टार्ट करूंगा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी से, जो 2024 सितंबर में चाइना में ख़त्म हुई, जहां पे हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद से हमारे प्लान्स थे कि कोई 20 से 25 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे नेशन कप में जाने से पहले, क्योंकि जो ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, उनके ऊपर हमें बहुत डिटेल्स में काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो भी प्लान्स बने वो एग्जीक्यूट नहीं हो सके, लैक ऑफ फंडिंग, हर दफ़ा यही मामला सामने आ जाता है। फिर हमने कोशिश की 3 डिफरेंट फेजेस में ट्रेनिंग कैंप्स लगा के अपने बच्चों को तैयार किया जाए, और उन ट्रेनिंग कैंप्स में हमने एक डेवलपमेंट स्क्वाड प्रिपेयर किया, और डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले, और उस डेवलपमेंट स्क्वाड को हमने कभी जापान की टीम बनाया, कभी मलेशिया की टीम बनाया, कभी न्यूजीलैंड की टीम बनाया। सो हम फील लेना चाहते थे कि खिलाड़ियों को कम से कम पता चले कि जो जिन टीमों के ख़िलाफ़ हम खेल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। सो एनीवे, लेकिन मेनली हम लोगों ने जो टारगेटिंग एरियाज़ थे हमारे, उसमें हमने फिज़िकल फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, और उसमें रिएक्शन टाइम और पावर को हमने टारगेट किया, और उसके साथ साथ हमने गेम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की थ्रू आउट जो 3 कैंप्स हमने किए। मुझे शुरू से ही इस चीज़ पे बड़ा यकीन है, और मैं इस चीज़ का ज़ाती तौर पे भी मुशाहिदा कर चुका हूँ। आई एम श्योर कि जुनैद भी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत स्किलफुल पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका जो स्किल्स की एग्जीक्यूशन है, स्किल्स की यूटिलाइजेशन है ड्यूरिंग द डिफरेंट गेम सिचुएशंस, वो कब, कहाँ, कौन सी स्किल को क्यों यूज़ करना है, उसमें आके हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। सो मुझे लगता था कि गेम इंटेलिजेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि बच्चों को बताया जाए कि उनकी जो स्किल्स हैं गेम की डिफरेंट सिचुएशंस में, उनको कहाँ कहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना। हर जगह पे अपनी स्किल्स को डिस्प्ले करना, भले उसका नुकसान हो रहा फ़ायदा होने की बजाय, ये उनको सिखाने की ज़रूरत थी, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं समझता हूँ कि जो फील्ड गोल्स हमने किए हैं इस नेशन कप में, वो इस चीज़ का सबूत देते हैं कि बच्चों ने अपनी गेम इंटेलिजेंस को पहले से बेहतर बनाया। और आपने जो बात की कि सिनेरियो बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इस टाइप की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रादर देन कि आप एक जेनेरिक, एक तो वो तो साथ साथ चल रहा होता है, बट आपने जिस तरह बात की कि जो एरियाज पहले से हाईलाइट हुए थे उनके ऊपर काम किया। प्लेयर्स कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभी तक? आपको जितना टेन्योर रहा है एज अ कोच, आर यू सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स दैट द प्लेयर्स आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ adapting and applying those trainings and those skills? जी एब्सोल्युटली। मैं जब नहीं भी पाकिस्तान टीम का कोच था, मैं उस वक्त भी कहता था कि पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ ये जो खूबसूरती वाली बात है
मैंने दुनिया में बाकी ममालिक में भी एज ए फॉरेन कोच भी काम करके देखा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स का जो अडप्टेबिलिटी लेवल है, जो परसेप्शन है उनकी, वो बहुत क्विक है, कैसे बहुत जल्दी डिफरेंट से है? आपने ओमान के साथ भी कोचिंग जी की मैंने है, ओमान, इजिप्ट इजिप्ट के में भी साथ भी कोचिंग की की। है। मैं अपने प्लेयर्स को जब हम एक चीज़ उनको डिटेल्स में समझाते हैं और वन ऑन वन उनके साथ सेशंस करते हैं, तो वो उन बातों को बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी दूसरे ममालिक में देखें, जो भी यूरोप की बात कर लें या ओमान और इजिप्ट की बात ही कर लें, इन ममालिक में भी जो खिलाड़ी हैं वो पूरा महीना काम करते हैं और उसके बाद जो उन्होंने सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक काम करना है और उसके बाद उन्होंने टाइम मिलेगा तो ट्रेनिंग के लिए आना है। इजिप्ट में भी मुझे हार्डली 2 से 3 दिन मिलते थे बच्चों के साथ ट्रेनिंग कैंप करने के लिए। पाकिस्तान में हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज है कि प्लेयर्स जो हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में हॉकी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बच्चों को उसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी लेवरेज मिलती है डिपार्टमेंट्स की तरफ से, घर से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि वो अगर हॉकी प्लेयर हैं तो उनको हर चीज़ में 100% पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता। सो उस वजह से उनका जो परसेप्शन लेवल है, अडॉप्टेशन लेवल है, वो बहुत हाई है। सो ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हैं कि जल्दी सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम इसी के साथ मैं लिंक करूंगी। जुनैद साहब, आपने, हम क्योंकि अभी ब्रेक से पहले भी एक हेडलाइन हमने देखी जो अंडर 18 में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जापान से हार गया, लेकिन हम अक्सर हेडलाइंस में यही पढ़ रहे होते हैं कि हमारी जो एज ग्रुप हॉकी है, जो ये हमारा एक स्पेसिफिक अंडर 18 हो गया, अंडर 17 हो गया, ये वाला जो आपके क्लब से कैप्टन भी जो है इस अंडर 18 टीम के, उनका ताल्लुक है, तो आप क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं इस एज ग्रुप के साथ। कितना पोटेंशियल है इस स्पेसिफिक एज ग्रुप में बिफोर दे बिकम ऑफ कोर्स सीनियर प्लेयर्स? हाउ इज इट डिफरेंट बीइंग इन्वॉल्व्ड विद दिस एज ग्रुप हॉकी टीम? बहुत शुक्रिया रोहा। मैं ये कहूँगा कि जी असल में जो किसी भी मुल्क में जो किसी भी चीज़ में आपने कोई इम्प्रूवमेंट लानी होती है तो वो यूथ होती है, और जो यूथ है वो भी अराउंड 10 to 14 आपने उस एज में उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक प्रॉपर प्लान के ज़रिए ट्रेन करना होता है। तो अभी आपने जो एग्जांपल दी, मैं उसी एग्जांपल को रिपीट कर देता हूँ। अभी जो गोलकीपर खेले थे मुस्तफ़ा इज़ फ्रॉम माई अकेडमी एंड देन द कैप्टन ऑफ द टीम इज़ आल्सो फ्रॉम माई अकेडमी। अच्छा, अब ये एक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द एशिया हुआ है अदील, जो कैप्टन है, एंड देन देयर इज अ राइजिंग स्टार द गोलकीपर। सो आई मीन असल चीज़ क्या है कि पूरी दुनिया में क्लब सिस्टम है और उन क्लब्स में टीयर्स हैं, उनमें जूनियर लेवल है, फिर मिडिल एज है, देन सीनियर्स। अच्छा, अब वो क्लब्स का कंपटीशन है, उसके अंदर प्लेयर्स ग्रूम होते हैं, फिर कंपटीशन टॉप क्लास होता है। तो आपको जो नेशनल को जैसे ताहिर है, उनको एक बना बनाया पूल मिलता है, फिर उसको वो हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह हमारी एकेडमी में 2 जोन हैं, वन इज़ डेवलपमेंट एंड वन इज़ हाई परफॉर्मेंस। जो हमारे बच्चे हैं 8 years to 14 years, ये ज़्यादा वर्क करते हैं डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर, एंड देन अबव 14 वो फिर आ जाते हैं हाई परफॉर्मेंस में। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोग सारे एक बात करते हैं कि जी ग्रास रूट, इट टेक्स कपल ऑफ डेकेड्स, नहीं उस पर वर्क हो सका। बट मेरे नज़दीक अभी ताहिर से भी मेरी हमेशा बात होती रहती है कि हमें इस वक्त अगर हॉकी को बेहतर करना है तो हमें डिपार्टमेंटल हॉकी को रिवाइव करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें अपनी एक प्रो लीग के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे इंटरनेशनल लीग होती है। इस वक्त वैसे हम प्रो लीग के ऊपर अब कर ही लेते हैं डिस्कशन कि क्या रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान की टू पार्टिसिपेट इन द FIH। मैं आपको बता दूं, देखें ऑब्वियसली पूरे साल का ना एक प्लान होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है जो किसी भी इदारे ने गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है कि जी हम जनवरी टू दिसंबर हमारा ये प्लान है। अच्छा, उसमें कई प्लान होते हैं जो कि कंफर्म होते हैं और कई टेंटेटिव होते हैं कि जी हम अगर जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, हमारा अनफॉर्चुनेटली हॉकी के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सका, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी काम किया, बहुत लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है हॉकी के ऊपर, हम उस तरह उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सके। अच्छा, सेकेंडली जब तक आप टॉप हॉकी नहीं खेलेंगे, आप टॉप हॉकी के बगैर कभी भी अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ताहिर काम कर रहा है, ताहिर ने चंद चीज़ें बताई कि जी मैं इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, बट उसको एवेल्यूएट करने के लिए उसकी आप कह रहे हैं एक रोड मैप पूरे साल का जो है वो
तैयार होता है, फिर वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है। एंड प्रो लीग जो है वो इस रोड मैप का फिलहाल हिस्सा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? ओनली द सॉल्यूशन, आई टेल यू। देखें, प्रो लीग तो एक आपके पास अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, अभी न्यूजीलैंड इनकार करेगी तो फिर हमने जाना है। अच्छा, उसमें हमारी गवर्नमेंट या कोई स्पॉन्सर वो कंफर्मेशन देता है जी हम पैसे दे रहे हैं, देन FIH हमें सेकंड कंसिडर करेगी आफ्टर न्यूजीलैंड ना करती है फिर हमें बुलाएगी। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बात की ना, एक क्लब सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना, और अपनी PSL की तर्ज की अपनी लीग बनाना, जैसे मैंने बात की, अगर आपके बच्चों के पास उनकी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो मुझे बताएं हाउ दे कैन। और ये एक बहुत रियल रीज़न है, आप जहाँ पे भी बात कर लें प्लेयर्स की मोटिवेशनल लेवल की, कोई आपने इंसेंटिवाइज करना है एक स्पोर्ट को, आपने उसको एक ऐसी प्रोफेशन बनाना है जो वायबल हो। और मैं इसी से लिंक करना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुआ है। एक तो ये कि आपने अपने यूथ को मोबिलाइज करना है, और दूसरा ये कि आपने उनको इंसेंटिव देना है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे अचीव हो सकती हैं रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, गिवन द करंट लिमिटेशंस जो पाकिस्तान हॉकी की हैं? देखिए, पहले तो प्रो लीग को थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी आप चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनके ऊपर आपने काम करना है, उसको फिर आप ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं, काम करने के बाद उनकी एवेल्यूएशन थ्रू इंटरनेशनल मैचेस ही होनी है। और ये एक बड़ा ही अच्छा मौका है कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करें और दुनिया की जो टॉप 8 टीम्स हैं उनके खिलाफ खेलें। अभी भी मुझे लगता है सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट इस चीज़ की सरपरस्ती करे, हमें फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी का अश्योरेंस हो और हम प्रो लीग में चले जाएँ। जुनेद जो बात कर रहे हैं कि अभी शायद इस एक हिस्सा बाकी है कि न्यूजीलैंड ने ना करेगा, उसके बाद फिर हमें वो इनवाइट करेंगे। मैं जानता हूँ इनसाइड स्टोरी क्या है, और इनसाइड स्टोरी यही है कि अगर हमारे पास फंड्स हैं, हम कह दें कि हम प्रो लीग में जाएंगे खेलेंगे, तो हम प्रो लीग खेलेंगे। ये ओनली अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल प्रोग्राम चाहिए हमें। और मुझे लगता है ये एक ऐसा मौका है रूहा कि अगर हमने ये गंवाया तो पाकिस्तान की हॉकी इतनी पीछे जाएगी कि फिर हम सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाएंगे पाकिस्तान हॉकी को दोबारा ऊपर लाने के। क्योंकि ये गलती हमने 2019 में की थी जब हम प्रो लीग में थे और हम नहीं खेले, और वहाँ से हम 11वीं रैंक से हम 19 में 20 पे चले गए थे। अब रेंगते दोबारा 14-15 पे वापस आए हैं, और यहाँ मौका है कि हम टॉप 10 में जाएं, और सिर्फ प्रो लीग उसकी विंडो है कि इस विंडो से अंदर हम चले जाएं, ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तान हॉकी में आ जाए। अभी 15th है पाकिस्तान का जो रैंक है इस वक्त, ग्लोबल रैंक है, और जब आप जूनियर रैंक देखते हैं तो हम टॉप 10 में हैं। तो इसमें ये जो थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है जूनियर टीम की रैंकिंग में और सीनियर टीम की रैंकिंग में, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? व्हाई कांट द नेशनल साइड मैच अप एंड डू बेटर देन आवर जूनियर? क्या ये कोई एज ऐसी होती है जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, या कोई और फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं? देखो, इसमें जैसे जूनियर यूथ लेवल है, इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं है। जूनियर वर्ल्ड कप या एशिया कप इस तरह के इवेंट्स होते हैं, वहीं पे आपकी रैंकिंग आती है, जिसकी वजह से जैसे पाकिस्तान ने लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप में जिस रैंक पे फिनिश किया वो रैंक आपके साथ होता है। तो जैसे इंटरनेशनल टॉप लेवल है, वहाँ पर तो आपके जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होने हैं। और अब जैसे ताय ने बात की कि हम 19th में हमने, उस वक्त हमारा एक बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि टाइम था कि उस वक्त प्रो लीग में आपको FIH ने इतनी बड़ी फेवर दी थी कि वी वर नॉट अंडर 10, हम उस वक्त 17-18 नंबर पे थे, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और भारत और ये 2-3 ममालिक इनके पास हॉकी नहीं होती, तो हमें ऐड कर लिया गया, जिसके ऊपर भारत ने क्विट कर दिया कि जी हम नहीं आएंगे। तो हमारे लिए सुनहरा मौका था, हमने उसको गंवाया। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज के फेडरेशन के अकाउंट में पैसे भी मौजूद थे जितने उनको चाहिए थे, और उसका जो इस तरह अभी ताहिर साहब ने कहा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक जो है, देखिए वो फियर था कि जी हम हार जाएंगे, हमें गोल ज़्यादा होंगे तो हम टीम नहीं भेजते। ठीक है। मैं क्योंकि इसी के साथ एक और डिस्कशन लिंक करना चाहती हूँ, हम यूथ के बारे में भी बात करें, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान हॉकी का इस वक्त, उसमें सिवाय आपकी जो नेशनल एक चैम्पियनशिप होती है उसके अलावा कोई प्रॉपर, हमें इस तरह आपने लीग की बात आइडेंटिफाई की, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है, बट व्हाई इजंट देयर अ प्रॉपर हॉकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान? इतने साल
से जो है वो हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा काम इस पे हो आपकी वैसे, बिकॉज you're ऑन द इनसाइड, यू माइट बी एबल टू टेल अस बेटर कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना लैग क्यों कर रहा है कंपेयर टू द अदर ग्लोबल टीम्स। देखिए, इससे पहले कि मैं किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डालूं, पहले मैं जुनैद से और अपने आप से शुरू कर देता हूं कि हम लोग भी इस चीज़ का जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हॉकी कम्युनिटी से हैं, हॉकी फैमिली से तल्लक है कि इतने साल गुजरने के बावजूद हॉकी वाले मिल के जो है एक प्रॉपर ईयर कैलेंडर नहीं बना सके। हमें देन एंड देयर वाली पॉलिसी पे चलना पड़ता है। मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूँ। जब तक हाई लेवल कम्पिटिटिव डोमेस्टिक हॉकी नहीं होगी तो ऊपर वाले लेवल पे जाना मुश्किल है। यहाँ से आपने सब कुछ शुरू करना है। एक जो शुरुआत हो सकती है वो है प्रोफेशनल लीग का एहतमाम। और इस पे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि शायद उस तरह से व्यूअरशिप नहीं आएगी, स्पॉन्सरशिप। डू यू एग्री विद दिस कि पीपल विल नॉट ट्यून इन टू वॉच हॉकी? इत्तेफाक करता, क्योंकि व्यूअरशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन सिर्फ इसको शुरू करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ प्रोफेशनल लीग सीनियर लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ ये जूनियर लेवल पे भी प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए, बल्कि ये स्कूल लेवल पे प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए। हॉकी 5 का जो शॉर्टर वर्जन है ना, शॉर्टर फॉर्मेट, हालांकि उसका भी वर्ल्ड कप होता है, दोबारा से स्कूल में हॉकी को एक्टिवेट करना चाहिए कि हम अपनी जो बेस है प्लेयर्स की, पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएं। वो तभी बढ़ेगी जब हम स्कूल में हॉकी शुरू करेंगे। और स्कूल में अगर हम हॉकी 5 की लीग शुरू करवा दें और वहां से एक कलरफुल लीग शुरू हो, रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो और प्लेयर्स वेलफेयर को हम एड्रेस करना शुरू कर दें, अब 2 साल में देखें कि व्यूअरशिप क्या, मैं कहता हूँ हर जगह आपको हॉकी नजर आएगी, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ बैठकर बहस करते हैं, अब हम 2 बैठे हैं ना, एग्जैक्टली यही कुछ प्रोफेशनल लीग की सारे बात करेंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। तो मतलब सारे के सारे सब लोग जो इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अगर सब बात कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? ताहिर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर द अचीवर्स। हमें अल्लाह ने हाई एंड अचीवर बनाया और हम जो कुछ भी आज हैं इस मुल्क की वजह से हैं और इस खेल की वजह से हैं। दुआएं सबके माँ बाप करते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से हमें इज्जत मिली है। देखिए, हमने ताहिर 24 में, ठीक है, हमने एक देखा कि 22 साल हो गए थे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल टीम नहीं आई। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हमारी अकेडमी ने, मतलब हम एक सिंगल हैं, हमारे पास कोई फाइनेंस नहीं थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। जो अभी आपने बात की ना व्यूअरशिप या स्पॉन्सरशिप, मतलब ये कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, हमने नीदरलैंड की क्लब जो एक नॉर्मल क्लब थी, हमने उसको इन्वाइट किया कि कम से कम कोई फॉरेन टीम खेले। आप यकीन करें, उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट की टीम खेली और जो अदील आज जो कैप्टन है, ही इज़ द फाइंड ऑफ दैट टीम। ये अदील उस टीम में से आइडेंटिफाई हुआ, पूरे पाकिस्तान से ट्रायल हुए, तो आज वो पाकिस्तान जूनियर का कैप्टन है। तो फिर अभी 25 में हमने 2 टीम्स बुलाई, फिर जर्मन नेशनल टीम, जर्मन के जो CEO हैं उसको जाके मैं खुद मिला हूँ, मेरी साथ टीम गई। वहाँ जाके हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जूनियर टीम को पाकिस्तान भेजें, और उन्होंने हमारी क्लब्स को देख के भेजा। ये जो मार्च में आई थी, जी मार्च में आई थी। रूहा, मैं ये कह रहा हूँ, देखें आप जैसे ताहिर ने बात की है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम लोगों को, पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम है हॉकी में, आप सबको इंडिविजुअली अगर हम सब कुछ करेंगे तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। आप हर बड़ा, चले ना हो हॉकी से ताल्लुक, कोई भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है, हमारे पास जितनी बैकिंग आपके बाकी स्पोर्ट्स, खैर क्रिकेट की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जितनी स्पॉन्सरशिप और जितनी बैकिंग हमें वहाँ पे नज़र आती है हर तबके से, नॉट जस्ट जो क्रिकेट खेले हुए हैं बल्कि जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी को आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। एंड आई वुड रियली वांट कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बट व्हेन वी कम बैक वी विल कैरी ऑन आवर डिस्कशन विद 2 ऑफ जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट और डिस्कशन हो रही है जी पाकिस्तान हॉकी पे। हमने थोड़ी प्रेजेंट सूरत हाल की बात भी की, हमने थोड़ी जूनियर लेवल पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं
और क्या नीड है, रोड मैप क्या बनना चाहिए आगे का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ऑफ कोर्स स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान हॉकी के करंट कोच ताहिर जमान साहब, और उनके साथ जी मौजूद हैं पाकिस्तान के ओलंपियन भी हैं और कोच भी रह चुके हैं और अभी वो अकेडमीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ख्वाजा जुनैद साहब। और इन दोनों लेजेंड्स के साथ हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। बट थोड़ी सी अब हम ना डिस्कशन लेके आना चाहते हैं इस वक्त जो हमारी टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, ख़ास तौर पे अभी जो नेशंस कप पे हमने देखा पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। कुछ लोगों का जो एनालिसिस था वो ये था कि पाकिस्तान टैक्टिकली जो था वो थोड़ा वीक रह गया इन द फाइनल। एज अ कोच, डू यू अग्री विद दिस एनालिसिस कि पाकिस्तान टैक्टिकली वीक था? आई वांट टू हियर योर ओपिनियन के कैसे देख रहे हैं आप इस ओपिनियन को? देखिए रोहा, ये तो हर एक किसी का राइट है कि वो अपने अपने एंगल से चीज़ों को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और अपना फीडबैक शेयर करता है। क्योंकि वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन मैं इसको पहले इस तरह देख लेते हैं इस तनाज़र में कि ये वही टीम थी जो उससे पहले 5-6 मैचेस खेली, फ्रांस को भी जीती, न्यूजीलैंड को भी पूल मैच में हम लीड कर रहे थे 3-1 हाफ टाइम तक। वही टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे जो हम लोग फाइनल में कोशिश की। लेकिन कुछ गलतियां हुई हमसे, वो बड़ा अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे न्यूजीलैंड वाले। हम लोगों की जो फेस्टिविटी का मोड था ना वो थोड़ा लंबा चला गया सेमीफाइनल फ्रांस को जीतने के बाद। कुछ ही घंटे पहले सेमीफाइनल खत्म हुआ और पाकिस्तान और अगले दिन खेलना पड़ गया। अब देखें जहां जहां हम बैक टू बैक मैचेस खेले हैं ना टूर्नामेंट के दौरान, सेकंड मैच में जाके हमें इशू आया और ये मेरे लिए एक एज ए कोच ग्रे एरिया था और उसके ऊपर हम काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अगली दफ़ा ठीक हो जाएंगे। अब इन टीमों को देखें, न्यूजीलैंड की टीम यूरोप में मैचेस खेलती रही, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया मैच खेल के आई, कोरिया मैच खेल के आई, इसी तरह जापान की टीम यूरोप में मैचेस खेल के आई। हम कहाँ खेल के आए? हम पाकिस्तान में कैंप करके खेलने चले गए। अब चीज़ों को कंपैरिजन हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने जो तैयारी की उसमें हमने फ़र्ज़ कर लें 1 मिलियन लगाया हमने, दूसरों ने 15-15 मिलियन लगाए, लेकिन वो फिर भी इस टूर्नामेंट में 6 और 7वें नंबर पे हैं। मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ? ये हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास बहुत अच्छा कॉम्पिटेंस लेवल है हॉकी का। अगर अच्छी फैसिलिटेशंस हो और आप उनको बेहतर कैंप जो लगा वो एडिक्वेट नहीं था, कैंप्स इंटरनेशनल मैचेस खेलने की जरूरत है, लेकिन वो जो फाइनल की जहां तक बात है ना, वी हैव लर्न द लेसन। अच्छा स्टार्ट नहीं था। डिस्पाइट दीज लैक ऑफ ये जो हमारे फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लानिंग है, हम फिर भी फाइनल तक पहुंचे, एक तो बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ की आई नो थोड़ी हमने अर्ली थोड़ी प्री मैच्योर फेस्टिविटी उसकी हमने एज मीडिया, हमारा भी ये रोल, हम भी इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली कर सकते थे कि हम थोड़ा सा सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह ही ट्रीट करें, नॉट एज अ फाइनल विन। बट क्योंकि इतने साल के बाद एक ऐसी न्यूज़ और इतनी पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ने को मिली पाकिस्तान हॉकी की, तो आई थिंक एट सम लेवल हम सारे कैरीड अवे थोड़ा सा। मुझे लगता है डेस्परेशन जो है ना ऐसे हाई मोमेंट्स में आगे उसको कंट्रोल करने की ज्यादा है, हमें हवास पे ज्यादा काबू रखना चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स जो है उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस होता है ड्यूरिंग दीज होता है, हम कोशिश करते हैं उसको लिमिटाइज करें, जितना भी लिमिटेड कर सकते हैं करें, लेकिन उसके बावजूद एंड ऑफ द डे पता है आजकल के दौर में जेन जो है ना, जेन जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमने फिर भी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उससे सीखा है और इसके लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। अभी ये प्रैक्टिकली तो मेरा ख्याल है कि पहला या दूसरा टूर्नामेंट ही था, सो इसको इन चीज़ों को टाइम लगता है। हम उन चीज़ों को ऐसे कंपेयर ना करें कि जैसे कोई 5 साल हो गए और हम वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने बात की यंग जो प्लेयर्स हैं, जो जेन जी है, जो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स थिंग्स, आप उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। ये प्लेयर्स जो हैं ये किस तरह की हॉकी खेलना चाहते हैं? क्योंकि जो हॉकी आपने खेली और जो हॉकी अब मॉडर्न हॉकी खेली जा रही है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? हाउ आर दीज प्लेयर्स अडेप्टिंग टू हाउ द वर्ल्ड इज प्लेइंग हॉकी? कैसे आप उनको हेल्प करें टू अडेप्ट टू द मॉडर्न गेम? रोहित, देखें जो जितने भी यूथ है ना जी, अदर देन हॉकी भी, इनको हमें पॉजिटिविटी की तरफ इंगेज करना पड़ता है। अच्छा, लेट्स से हमारे प्लेयर्स आते हैं ग्राउंड में आके एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, स्किल्स करते हैं, फिजिकल एवरीथिंग, बट इनके पास तो ज़्यादा टाइम आउट ऑफ द पिच होता है। तो आउट ऑफ द पिच इन्होंने क्या करना है, दैट इज़ इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इस वक्त आप कह लें 2022 के करीब ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एज अराउंड 17-18 के करीब है। हम उनको मोबाइल के ज़रिए डिफरेंट उनकी जो ड्रिल्स हैं, उनकी जो जो फ्लॉज हैं, उनके ग्रे एरियाज हैं इंडिविजुअली और ड्यूरिंग द मैचेस, हम उसके ऊपर उनको फोकस करते हैं कि घरों में जाके कम से कम कि हर वक्त मोबाइल देखने की बजाय कुछ ड्रिल्स देखें। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे नज़दीक इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है, हाउ टू। किस एरिया में आपको लगता है कि ज़्यादा
काम की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स होता है ना कि अगर आप पेनल्टी कॉर्नर की बात करें, आप डिफेंस में बात करें कि थोड़े लैप्सेस हैं जिन पे आपको लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हाउ डू यू टैकल दैट? मेरे नज़दीक जी 3 ऐसे रीजंस हैं। देखिए हॉकी जो है ना ये मल्टी डायमेंशनल गेम है, और उसके अलावा आप देखें कि प्रोएक्टिव हमारे नज़दीक जो हम लोग एज ए रिएक्टिव काम करते हैं, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया या टॉप नेशन हॉलैंड जर्मनी, उनका प्लेयर जो है वो उसको पहले ही थोड़ा सा देख लेता है कि अभी क्या होने लगा, तो वो सेफ मोड में चला जाता है। अच्छा, हमारा प्लेयर जो है क्योंकि बहुत टॉप हॉकी नहीं खेला होता, उसके अंदर एक फ्लॉ है, तो वो ये गैप है उसके अंदर। अनटिल अनलेस जब तक 50-60 मैचेस नहीं खेल लेते तो तब तक हम प्लेयर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं कि जैसे 23 यार्ड ऑफ ईदर साइड वेयर यू आर गोइंग टू स्कोर और सेव, यू नो, हम इन 2 जोन्स में बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत हैं। अभी जैसे अभी ताय ने बताया कि हमारी टीम न्यूजीलैंड के साथ पूल मैच बहुत अच्छा खेली, मैंने देखा। फाइनल में क्या होता है कि अर्ली मे बी कंप्लेसेंसी भी कह सकती हैं आप, माइट बी पॉसिबल, बट जो अर्ली मैच की हैंडलिंग है प्लेयर्स से वो नहीं हो पाई, उसमें हमें अगली गोल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी डिप्रेशन होती है। लेकिन हमें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी ऐसे कई मौकों पे हमने कंसीड अर्ली ऑन किया, लेकिन फिर वापस पूल मैच फ्रांस के अगेंस्ट भी हमने ऐसे किया था। मैं तो बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स देखता हूँ। हम शूट आउट पे पिछले 3 टूर्नामेंट हारे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में हमने शूट आउट पे जीता फ्रांस जैसी टीम को। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है कि पहले से चीजें जो है ना, आप इंडिकेटर्स देखें, आप केपीआईज को देखें कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है तो एक दिन हम टॉप 3 में भी आ जाएंगे। लोगों को असल में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नहीं है, लोगों को चाहिए इंस्टेंट। जो इंटरेस्टिंग बात है ना, फाइनल खेलने से पहले हम 12वीं रैंक पे थे और फाइनल हारने के बाद 24.5 पॉइंट लूज करके हम 15वें पे चले गए हैं। अब वर्ल्ड रैंकिंग ऐसी है। सो आपको हर मैच जो है ना वैल्यू करना पड़ता है, सिर्फ टूर्नामेंट जीतना वैल्यू नहीं करता। बिल्कुल। सो ये मेरा मतलब सारी चीजें हैं। अच्छा, एज अ कोच आपने क्योंकि एक चीज आइडेंटिफाई भी खुद की कि जो आपका अपना ग्रे एरिया, आपने कहा कि क्योंकि हम सेमीफाइनल के बाद जो थे वो उस मोड में नहीं आ सके। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेशंस कप एंड ओवरऑल जितना भी अभी आपका टेन्योर गुजरा है, और ऐसा कौन सा एरिया है टैक्टिकली जहाँ पे पाकिस्तान यू थिंक कैन डू बेटर? ऑफ कोर्स हमारा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट बहुत बेहतरीन नहीं है, उस पर भी काम हो सकता है, डिफेंसिव लैप्सेस थोड़े नजर आए, बट एज अ कोच हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दीस टैक्टिक्स? सबसे इम्पोर्टेंट हमारी गोल कीपिंग। हमें गोल कीपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई गोल कीपर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट एक्चुअली। हमने उसके बड़ा काम किया, जो साथ कोचिंग स्टाफ था, उस्मान था, ज़ीशान अशरफ था, मज़हर अब्बास था, ये लगे रहे इस पे, लेकिन अभी भी वो ग्रे एरिया है। और अब देखिए बात आ जाती है फंड्स की, जब हम बार बार बात करते हैं। मेरा प्लान ये होगा कि मैं अपने 4-5 गोल कीपर्स को लूँ, उनको 3 महीने के लिए यूरोप भेज दूँ, वहाँ ट्रेनर को हायर करूँ और ख़ुद जाके उनके साथ चेक करूँ। तो 3 महीने वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग करें, लेकिन पैसे चाहिए इसके लिए। हमारे पास पैसे नहीं है, इस ग्रे एरियाज को कैसे कवर करें? पाकिस्तान में ही काम करते रहेंगे। जुनेद ने यहाँ पे गेम्स के डिफरेंट सिचुएशंस की बात की ना, कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह करते हैं। अब बात जो आगे ख़त्म होती है ना, हमारे यहाँ जो असल फुकदान है वह कोचिंग एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। हर कोच की एक अपनी फ़िलासफ़ी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे कोचिंग मेथोडोलॉजी में या कोचिंग फ़िलासफ़ी में। हर कोई अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ हॉकी का मसला नहीं है, हर जगह में हर है। स्पोर्ट अब में होना आप क्या देखें। चाहिए कि हमें कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करने चाहिए। वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करने चाहिए, हॉकी फेडरेशन को करने चाहिए, पंजाब हॉकी को करने चाहिए, सिंध, हर किसी को करने चाहिए। लेकिन हम लोग उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये कोचिंग यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जुनेद की एकेडमी में बच्चा सीख रहा है, इसकी जो कोचिंग फिलॉसफी है कोचेस की, कल को उस बच्चे के बाप की ट्रांसफर होगी, वो कराची चला गया लेकिन वो हॉकी खेलना चाहता है। अब वहां पे जो कोई एकेडमी क्लब ज्वाइन करेगा और उस कोच की फिलॉसफी डिफरेंट होगी इससे, तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा? वो तो वहां पे रुक जाएगा, उसके जो फर्दर डेवलपमेंट तो नहीं ना होगी। सो जब तक कोचेस की सोच में, फिलॉसफी में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, जो प्लेयर्स का डेवलपमेंट प्रोसेस है, उनकी जो ग्रोथ है ना, वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगी। और हमारे भी जो प्लेयर्स, जो हॉकी के बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, वो भी अगर बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं रादर देन के पाकिस्तान उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे। सोहेल अब्बास इज वन नेम जो आपके माइंड में आता है। इस तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये सेटअप छोड़ के गए। इस पे आपका जाती क्या राय है, क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है?
और देखें नहीं, मैं पहले ताहिर ने जो बात की उसी को मैं बताता हूँ। देखें, हमेशा आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो लोग वेट नहीं करते हैं। नेशनल स्पोर्ट है, लोग हॉकी को अच्छा देखना चाहते हैं। इसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। शॉर्ट टर्म प्लान है, आप जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की बात होती है ना, आप प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएं और एक PHF का सेंटर हो। जब तक हम तकरीबन 100 to 150 प्लेयर्स जो एट द एज ऑफ फ्रॉम 16 to 20 अगर हम इनको इंगेज नहीं करते हैं ना, तो मैं ये दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म वर्जन कि अगर आप पाकिस्तान को, मे बी आई एम रॉन्ग, दिस इज़ माई ओपिनियन, ताहिर का डिफरेंट, किसी और का डिफरेंट हो सकता है। जो मैं अकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ, अगर पूरे पाकिस्तान से आप जो इस एज ग्रुप में 16 to 20 एज ग्रुप के अंदर अगर आप 150 के करीब बच्चे ले लेते हैं और उनको अपने घरों में रखें, जब 16 साल का बच्चा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 1 साल बाहर रहे, तो वहीं ट्रेनिंग करवाएं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। गोलकीपर की जो एक किट है 5 लाख रुपए की है। Exactly. ये इसलिए फुकदान है। तो ताहिर ने बात की है ना, कोई बच्चा, किसी का बाप अपने बच्चे को गोलकीपर नहीं खिलाना चाहता। हमारे पास सिर्फ जूनियर सीनियर कैंप्स में या डिपार्टमेंट में गोलकीपर्स के पास किट है। लिहाजा जो टैलेंटेड बच्चे हैं गोलकीपर, वो तो आते ही नहीं है, जिनको किट मिलती है वो खेलते हैं। तो लिहाजा ये हमें जब आप खेलते थे, जब आपका एरा था, एक्टिव एरा था, तब क्या ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स नहीं थे आपकी फैमिलीज ने जब आपको सपोर्ट किया? मैं आपको बताता हूँ, देखिए हाउ वाज इट डिफरेंट? शायद उस टाइम ज़्यादा हूँ, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन हॉकी का एक उसको कल्चर था। पूरे पाकिस्तान में हॉकी ही देखी जाती थी, बूम पे थी हॉकी, बूम थी, मेडल विनर थे। अच्छा, उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हॉकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उस वक्त तकरीबन 30 के करीब डिपार्टमेंट्स थे जो प्लेयर्स को जॉब्स दे रहे थे, उनको इक्विपमेंट दे रहे थे, ठीक है जी, उनका ब्रेड एंड बटर। पीटीवी की तरफ से भी बहुत बड़े-बड़े नाम हमने देखे हॉकी के, बहुत ज़्यादा थे उस वक्त। आप यकीन कर, जैसे हम लोग खेले में तो है, हमारा पूरा जो टेन्योर है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ PIA रहा है कि PIA पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को स्पॉन्सर करती थी। उन्हीं का जो प्रेसिडेंट होता था वो प्रेसिडेंट PI, चेयरमैन PI और प्रेसिडेंट PHF। कभी कोई डेली अलाउंस, कभी कोई आपकी टिकट्स या कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो उस वक्त हमारे ऐसे इकोनॉमिक, तब एक इकोसिस्टम चल रहा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं थी, तब ये सारी चले। अब क्योंकि हमारी डिस्कशन को थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ भी लेकर आए। मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, नेशनल बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये उस एरा की वजह से है। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी अट्रैक्शन कि आपने PhD करके भी नौकरी लेनी है 2-3 लाख की, तो वो आपको हॉकी से मिल रही थी। वो अट्रैक्शन खत्म हो गई हुई है। सो एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि रेस्टोरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल टीम्स एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ये एक इतनी बड़ी अट्रैक्शन है कि इसको हमें करना ही पड़ेगा कि अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएं और पाकिस्तान हॉकी में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आ सकें दोबारा से। चलिए, अब क्योंकि कंक्लूजन की तरफ हमने आना है, अब फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम करंटली, सिर्फ अगर हम इस टीम की बात करें, निकाल दें बाकी सारे जो भी हमने मसाइल, जस्ट पुट देम असाइड फॉर अ सेकंड, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस लॉट आफ्टर द नेशंस कप सक्सेस? हम सक्सेस ही कहेंगे हमारे लिए, वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब ये बात बार बार करता हूँ कि हम पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कॉम्पिटेंस लेवल शो करता है हमारे खिलाड़ियों का कि उनमें टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस मिलें और उनकी वेलफेयर पे काम किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है वो प्रो लीग में जाएं, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हों, उनके जो अलाउंसेज उनको टाइमली मिलें, डिपार्टमेंटल जॉब्स जो हैं उनकी रेस्टोरेशन हो, नई जॉब्स की क्रिएशन हो, प्रोफेशनल लीग करवाई जाए। अगर अब गवर्नमेंट, मैं फिर ये कहता हूँ कि फंड्स ना दें, खुदारा हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर दें। हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमारी होटलिंग करें, हमारी टिकटिंग करें, प्लेयर्स को अलाउंसेज दे दें, ना दें फंड्स आप। लेकिन ये अगर यही मौमा इस तरह हल हो सकता है तो फिर इसी तरह कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हम पर हर दफ़ा इल्ज़ाम रहता है कि पैसे दिए थे लेकिन हिसाब नहीं मिला, फलां खा गया, फलां खा गया। कुछ माशाल्लाह हमारे हॉकी वाली फैमिली भी ऐसी है कि खाम खा एक दूसरे को गंदा किया है। ऑनेस्टली मैं बड़ी ब्लंट बात कर रहा हूँ। सो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया है और अभी भी इसमें इतनी पोटेंशियल है कि दोबारा से ये काम कर सके। तो प्लीज इसकी सरपरस्ती करें। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। आपकी तरफ से भी क्लोजिंग थॉट्स? जी अरे बिल्कुल जी, देखिए हमारी इस टीम में, जो हमारी करंट टीम है, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे नज़दीक है वो उनका एज ग्रुप है। ठीक है, एज ग्रुप इज़ वंडरफुल। उनके पास टाइम है और नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर उनको प्रॉपर, जिस तरह भी मैनेजमेंट कहती है, उस
के ट्रैक पे चलते हुए ग्रूम किया जाए तो दे कैन ब्रिंग लॉरल्स। और ऑब्वियसली Absolutely. मेरे नज़दीक जो मेरा आइडिया है वो ये है कि जब तक बेस ब्रॉडर नहीं होगी, आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं बढ़ेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। और उसके तरीकाकार हमने डिस्कस कर लिए हैं बिल्कुल। कि उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आपकी एकेडमीज, आपकी डिपार्टमेंटल हॉकी, आपकी लीग। ये सारे बहुत ये रेलेवेंट अगर- पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। और ख्वाजा जुनैद साहब, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अकेडमीज़ के साथ, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके अभी रोड मैप है, वी विश यू सक्सेस इन दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ताहिर ज़मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत ज़बरदस्त एक मोमेंटम के साथ लेके चल रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को, एंड वी कैन नॉट वेट टू सी वेयर पाकिस्तान हॉकी गोज नेक्स्ट। सो थैंक यू आपके टाइम का भी Thank you. फॉर joining us on PTV Sports. And before we wrap up, of course, another reminder for all of you, अगर आप लोगों ने हमारी डिस्कशंस को एंजॉय किया है और कुछ सीखा है या आपकी कोई अपनी राय है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या अपनी कोई पास्ट मेमोरीज हमसे शेयर करना चाहते हैं हॉकी के हवाले से, या आपके इन डिस्कशंस पे क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ये सब आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। सो डू नॉट फॉरगेट to follow us on this Facebook page and send us your opinions. आपकी जो भी opinions हैं, feedback है इस शो के मुतालिक ज़रूर हमें भेजें। आपका बहुत शुक्रिया for watching Sports Tonight. We will be back